हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू टारगेट यूपीएससी। रिसेंटली हमने एक फॉर्म रिलीज किया था आस्किंग स्टूडेंट विच इज द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर फॉर देम और विच इज द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2024। तो वी वेर सरप्राइज टू सी कि सबसे ज्यादा जो रिक्वेस्ट आए थे वाज फॉर सी सैट। दे वांटेड अ स्ट्रैटेजी फॉर सी सैट क्योंकि 2023 का जो सी सैट का पेपर था वाज वन ऑफ द टफेस्ट पेपर। एंड जिस तरीके से इनफॉर्मल डेटा बाहर आ रहा है, जो 6 to 7 लाख स्टूडेंट्स ने प्रीलिम्स अपीयर किया था 23 का, ओनली 80,000 स्टूडेंट्स could clear CSAT cutoff. ये informal data बाहर आया है. So to address to your problems, what we have today is Rishi sir. And ऋषि सर के बारे में वो खुद बताएंगे तो आपको पता चलेगा. एंड थ्रू दिस सेशन आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि सीसैट का प्रिपरेशन कैसे करना है, कैसे अप्रोच रखना है 2024 के लिए. मूविंग ऑन टू ऋषि सर. Hi everyone, hi aspirants. My name is Rishi. I am an MBA from IIM Bangalore. I graduated in 2021. I've been teaching students who are preparing for various entrance exams in India for last about 7-8 years now. A brief about me: I have been appearing for CAT, which is a common admission test for MBA entrance exam, and I have been appearing the exam for last 7-8 years, and I have been scoring 99 percentile each year. So I jokingly say that if there's one thing I know in life, it's how to crack the entrance exam, and that's exactly what I'm going to help you guys with. So yeah, looking forward to this podcast, sir. He has cracked all the aptitude exam in India, तो ये सबसे important part है. Secondly, हर बार ये जाके CAT का पेपर देते हैं. He also teaches CAT students, so वो हर बार जाके खुद का भी एक analysis करते हैं. And every time he is among the top 1%. तो ये एक important thing है which you should know about ऋषि sir. Secondly, टू स्टार्ट विथ मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहता था ऋषि सर को, क्योंकि जिस तरीके का पेपर आया है, द काइंड ऑफ प्रोटेस्ट एस्पिरेंट्स में चल रहा है कि इट इज इन लाइन विथ कैट पेपर. तो मैं सर को पूछना चाहता हूँ कि सर ये रियली कैट लेवल का पेपर था या व्हाट इज योर एनालिसिस अबाउट सीसैट पेपर? आप पिछले 1 साल से स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू सीसैट और 7 to 8 ईयर्स आपने कैट स्टूडेंट्स को गाइड किया है. वाज मतलब वो मेरे हिसाब से तो वो कैट से भी डिफिकल्ट थे कुछ क्वेश्चंस. व्हाट इज योर एनालिसिस? वी वांट टू हियर फ्रॉम यू. Sure. So yes, I had a look at CSAT 2023 question paper. और जब मैंने first time देखा, I was like, what are these questions, right? I mean, I was like, I am appearing for CAT once again. So some of the English questions that I saw, the level of wordplay that was used, the logic that you would have to use to kind of arrive at the solution. And generally, and this is what happened with me, and I'm suppose happened with most of you as well, you could eliminate some of the options, but you would always get confused between the two, and you would end up marking the wrong ones. Coming to the reasoning part, sir, I was blown away with the question, the difficulty level of the questions that were asked. Like I remember solving remainder questions, right? You have there are a couple of questions that were there where they asked you to find what is the remainder when a nasty little big number divided by some another number, right? And I remember I used to solve those questions way back about 5-6 years ago, and it has so many concepts and so many variety that can be asked. And I'm really surprised that these CAT level questions or perhaps tougher questions are being asked in CSAT. So it was quite intriguing for me as well. And yes, I believe it was one of the tough papers. I also, when I was teaching the aspirants for last 1.5 years, we also looked at past 10 years of question papers of CSAT, right? And we had that PYQ series as well. And you look at that, those number of questions versus the CSAT 2023 questions, the difference are remarkable, and I feel that they have taken a game a notch level up, and I believe it's going to be even tougher next year as well. मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स, मतलब जैसे यूपीएससी के सिलेबस में दिया है कि इट इज गोइंग टू बी अ 10th लेवल एग्जामिनेशन. 10th लेवल का सिलेबस है. मतलब आई डू नॉट बिलीव वो 10th लेवल के क्वेश्चंस है. few of the questions were directly taken from JEE एडवांस लेवल पेपर. कैट के RS अग्रवाल के बुक से कुछ डायरेक्टली उठाया है. तो वो 10th लेवल का तो नहीं है मैथ्स. मतलब एवरीवन हैज पास्ड 10th लेवल, नो मैटर SSC, CBSE या फिर ICSE से. 10th लेवल का वो क्वेश्चंस नहीं है. सो दे हैव टेकन इट, फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस वर रियली डिफिकल्ट. तो मतलब व्हाट इज योर टेक? मतलब 10th स्टैंड के थे क्या वो क्वेश्चंस? Okay, I mean, politically they are correct when they say those are 10th standard questions, but the thing is, the foundation and the concepts that are used are actually 10th level, but the trickiness and the logic that you have to apply for those questions to be solved, it's so rare, and you have to kind of dig down all the variety of the problems that can be asked from
let's say that particular area. So I'll give you an example. These remainder questions or factorization questions, right? If you know the trick how to solve that question, it's like a 2-minute question for you. But if you don't know that, even 30 minutes are not enough. So that is the problem that I faced in CSAT 2023. A lot of people say that it was a difficult paper. I would say if a paper is difficult, right, it means that everybody is struggling. Even a topper is struggling and even a newcomer is struggling. But this paper was not difficult, it was a tricky one. So the problem with tricky question paper is, if you know the trick, it's a 2-minute question. If you don't know, even 30 minutes are not enough. And that's when people are, all these 80,000 people that we are talking about. I guess these are the ones who I believe they might have gone through variety of the questions and they knew how to solve and the tricks involved in the questions, and that's where I guess they surpassed. मतलब जिस तरीके के स्टूडेंट से मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ कि मतलब दो स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IITC के स्टूडेंट्स है, उनका CSAT नहीं रुका है. सो वी कैन नॉट से कि दिस क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन कि जिनका जो इंजीनियर्स है उनका निकल रहा है. Even engineers from the best colleges have failed this year. So I consider कि ठीक है इसमें logic necessary है, लेकिन वो time bound question solve करना बहुत difficult हो चुका है. And we are seeing कि engineers नहीं solve कर रहे हैं. Consider case for a BA student या फिर जो हिंदी मीडियम से पढ़ा है, उनके लिए तो और भी difficult है. If you have seen the number of students who are getting selected from Hindi medium, that has dropped to 5%, less than 5%, which is a very scary situation. एंड पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है कि जब मैं इंटरेक्ट कर रहा था स्टूडेंट्स के साथ, ऐसा कभी हमने फील नहीं किया कि इस बार ऐसा हुआ है कि बच्चे डायरेक्टली छोड़ रहे हैं प्रिपरेशन, क्योंकि पिछले 2-3 साल से उनका CSAT नहीं मतलब निकल नहीं रहा है. तो द फीलिंग हैज बीन कि चलो छोड़ देते UPSC एंड लेट्स लुक एट द B ऑप्शन. पहले कभी मैंने जब 5-6 साल प्रिपेयर किया था तो कभी ऐसा सिचुएशन नहीं था. आज ऐसा सिचुएशन है बिकॉज ऑफ CSAT. पीपल थिंक दे कैन नॉट क्लियर इट एंड दे आर लुकिंग फॉर एन ऑल्टरनेटिव ऑप्शन. सो आई वांट टू आस्क यू, क्या एप्टीट्यूड डेवलप किया जा सकता है या फिर मतलब व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर सच पेपर? मतलब ऐसा है कि छोड़ दिया जाए या इसको फेस करके, अगर फेस करना है तो क्या स्ट्रैटेजी के साथ फेस करना है? So I definitely sympathize those students who have been kind of unable to clear the prelims just because of CSAT, or we had some examples here as well. तो मेरा यही कहना है कि see, in the end, it's an aptitude, right? Aptitude is not an art, it's a skill. And any skill in life can be developed. So for example, you have questions of reminders, as I just mentioned, right? If I teach you reminders for 7 days straight, 8 days you will be expert in the reminders. But you have to put that amount of effort. And what I feel is consistency is very important. I've been interacting with aspirants, like they'll create a crazy schedule. They will say, okay, we'll study for 12 hours, 14 hours a day. But it's not sustainable, right? You cannot go on studying 14 hours a day for more than a week, right? So what I want is take smaller baby steps. Maybe once in a week you start watching some of the tutorials, some of the videos, maybe practicing some of the questions. I know now is the time you would say, oh, we have so much time, इतना ज़्यादा time बचा है, CSAT तो next year है, time पे कर लेंगे. नहीं होगा, ट्रस्ट मी, नहीं होगा. IIT IISc ग्रेजुएट से नहीं हो रहा है, एंड द रीजन इज वेरी सिंपल. नो डाउट द डिफिकल्टी लेवल ऑफ पेपर इज वेरी हाई, बट एट द सेम टाइम we have seen casual approach from the candidates as well. Right, so as you rightly said कि the problem is दोनों side पर problem है. It is not just कि सिर्फ paper difficult आ रहा है. Students also have tried, मतलब उनकी भी एक गलती है कि उन्होंने casually देखा है. पिछले साल भी paper difficult था तो भी they did not prepare. मतलब I remember हमने इंग्लिश का सेशंस आपके थे. बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कॉल है कि सर वो इंग्लिश के सेशंस में सेवर फॉर देम, मतलब उस वजह से उनका मतलब CSAT निकला है. एंड प्रॉब्लम यही है कि हम इसको इतना लाइटली ले रहे हैं कि हम गलतियां करते जा रहे हैं और उससे सीख नहीं रहे. द स्मार्टेस्ट पीपल आर हु लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स. मैं यही बोलना चाहता हूँ, नो मैटर आपने कहाँ से ग्रेजुएशन किया है, अगर आप टॉप कॉलेज के इंजीनियर्स भी हो या फिर आपने BA भी किया है, सबको CSAT पढ़ना पड़ेगा. जैसे आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हो, पॉलिटी पढ़ते हो, इकोनॉमी पढ़ रहे हो, एनवायरनमेंट के लिए आप इतना टाइम देते हो. लक्ष्मीकांत आप 1000 पेजेस का बुक आप पढ़ रहे हो 4 से 5 टाइम, मतलब यू आर रीडिंग 5000 पेजेस इन अ स्पैन ऑफ 5 to 6 months, एंड आप CSAT के लिए टाइम नहीं देते हो, आप उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो.
जितना आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा पेपर को। जब मैं एग्जाम दे रहा था सर 2013-14 में, तब सीसैट के नंबर्स भी कैलकुलेट होते थे एंड वी यूज्ड टू गिव एवरी संडे जाके टेस्ट देते थे हम। तो दैट काइंड ऑफ सीरियसनेस था। हमने सीसैट के लेक्चर्स किए थे तब। वी हैड फेमस टीचर हु यूज्ड टू टेक अ लेक्चर इन एन ऑडिटोरियम एंड पूरा सीरियसली हम करते थे, हम झगड़ते थे। हम ट्रिक्स, एक बुक बनाई थी मैंने, मुझे आज भी याद है कि ऑल द फॉर्मूलाज आई यूज्ड टू राइट, क्योंकि तब कैलकुलेट होता था, तब सीरियस नहीं था। अब ठीक है 66 नंबर है, लेकिन यूपीएससी हैज मेड श्योर यू कैन नॉट टेक दिस पेपर लाइटली एंड देयर इज अ रीजन व्हाई यूपीएससी इज कीपिंग दिस पेपर। मतलब द रीजन इज नॉट टू चेक योर मैथ्स। मैं हमेशा बोलता हूँ स्टूडेंट्स को, इस पेपर से वो लॉजिक चेक करना चाहता है। हमने क्या कर दिया है, 12th के बाद मैथ्स बंद कर दिया एंड द बेस्ट थिंग टू डेवलप लॉजिक इज सॉल्विंग एप्टीट्यूड टाइप ऑफ क्वेश्चंस, लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस। एडमिनिस्ट्रेशन में भी लॉजिक जरूरी है। दे वांट पर्सन्स और दे वांट कैंडिडेट्स हु हैव स्ट्रांग लॉजिक, और वो लॉजिक कैसे चेक कर रहा है, थ्रू दिस एप्टीट्यूड पेपर। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं सीसैट के पेपर में भी कि वो लॉजिक से आ रहे थे, वो मैथ से नहीं सॉल्व करने थे। तो मतलब हम डिस्कस कर रहे थे, देयर वाज अ क्वेश्चन, देयर वर 2-3 क्वेश्चंस जहां लॉजिक से इट कुड बी सॉल्व्ड इन 2 to 3 मिनट्स, लेकिन अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच से जाओगे, फॉर्मूला से जाओगे, वो नहीं सॉल्व होगा। तो यूपीएससी इज ट्राइंग टू चेक एट सम इंस्टेंसेस, इट इज ट्राइंग टू चेक लॉजिक। तो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? मतलब Definitely, I completely agree with you. And as an administrator, you are dealing with, you are also dealing with the policy, but you are also dealing with the execution of it, right? So you need to have that logical approach that sometimes, you zoom out, take a 10,000 feet view, and then, you zoom in and look at the ground reality as well. और अगर ये सब अगर करना है, you need to have that rationalized approach. And that rational, that logic can only be built with the aptitude. And that is the reason why you see the questions in English. They don't ask you which of the following is the synonym or antonym or whatever. They ask you what is the rational or best approach that can be dealt in this particular situation. Or they ask you which of the following can be inferred from this situation. So they are basically training you in CSAT itself to become a good administrator. So we have to look at CSAT, English, reasoning with a very rationalized approach. It's a very logical exam. You don't have to mug up 100 different formulas and solve 1,000 different questions. You just have to be consistent with your approach. Maybe slowly build logic 1 hour a week, 2 hour a week, and gradually increase it as the CSAT approaches, is what I feel. And there is a famous saying, sir. I mean, I was visiting one of the border areas near Jaisalmer, and there is a BSF post where they read that the more you sweat in a peace, the lesser you bleed in a war. Right? So I feel this is the peace time, and your CSAT is the war. If you don't want to bleed your marks there, I guess now is the time that you start. At least, at least take baby steps. Build a foundation in this phase. मतलब मैं यही बोलता हूँ कि next 2-3 months जब आप मेंस कर रहे हो तो फाउंडेशन बिल्ड कीजिए। मतलब आपका लॉजिक पुअर है या फिर आपका मैथ्स आपने बहुत पहले छोड़ा है, तो वो टॉपिक्स जो आपको लग रहा है कि वीक है, उस पर काम करना स्टार्ट करो। गिव एटलीस्ट 2 to 3 hours पर वीक। जितना आप थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करोगे, बेबी स्टेप्स लोगे तो होगा। नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि मैं जनवरी से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि 6 महीने पहले प्रीलिम्स के पहले अगर मैंने स्टार्ट किया तो मोर देन इनफ है। लेकिन नहीं होता है, क्योंकि इतना प्रेशर बिल्ड होता है, करंट अफेयर्स आ रहा है, नए सोर्सेस आ रहे हैं, नए यूट्यूब वीडियोस है, कंपाइलेशन है, इतनी सारी चीजें पढ़नी है, तो वो आप उतना कॉन्सेंट्रेशन से, उतना क्लैरिटी से वो कॉन्सेप्ट्स बिल्ड नहीं कर पाते। वो जब आप हड़बड़ी में कुछ करते हो तो वो नहीं होता है। तो दिस इज द राइट टाइम। सेकेंडली, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे, इसमें the practice is on 2 fronts. एक तो है कि सॉल्व करना, एंड द सेकंड प्रैक्टिस इज विद रिस्पेक्ट टू लीविंग डिफिकल्ट क्वेश्चन। कभी कभी क्या होता है कि हम सिंपल क्वेश्चंस पर मतलब सिंपल क्वेश्चंस लीव कर देते हैं और डिफिकल्ट को अटेम्प्ट करने बैठते हैं, वहां टाइम बाउंड सॉल्व नहीं कर पाते। तो मेरा यही कहना है कि ये भी एक स्किल है, द स्किल ऑफ लिविंग द डिफिकल्ट क्वेश्चन एंड द स्किल ऑफ सॉल्विंग द सिंपल क्वेश्चन। और ये कब समझेगा कि कौन सा क्वेश्चन सिंपल है, डिफिकल्ट है, इज बाय प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस इज नेसेसरी नॉट जस्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन बट ऑल्सो टू अंडरस्टैंड कि कौन से डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कौन से इजी क्वेश्चन है, तो एंड हाउ डू वी मूव विद दोज क्वेश्चंस। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। टाइम को एडजस्ट करना बहुत, टाइम बाउंड सॉल्व करना बहुत मतलब डिफिकल्ट है। एंड इस बार का जो सीसैट का पेपर था, मेनी इंस्टीट्यूट टू 2 to 3 days टू गिव कीज। जो इनिशियल कीज आई थी वो इतनी गलत थी, तो इवन इंस्टीट्यूट विथ ऑल द टाइम, विथ ऑल द एक्सपर्ट ऑल्सो कुड नॉट गिव। मतलब ये हमारे साथ भी है, इट्स नॉट जस्ट दैट मैं बाकी इंस्टीट्यूट को बोल रहा हूँ, हमारे साथ भी ये है। क्योंकि लेवल ऑफ कुछ क्वेश्चंस आज भी ऐसे क्वेश्चंस है कि जहाँ
इवन वी आर नॉट श्योर कि इसका आंसर क्या होगा। तो ऐसे सिचुएशन में आई वुड रिक्वेस्ट, मतलब यही हमारा स्ट्रैटेजी रहना चाहिए कि आज से ही स्टार्ट करो, ऐसा ना हो कि फिर लास्ट में रिग्रेट करो कि यार थोड़ा और स्टार्ट कर लेते थे। राइट राइट। सो आई जस्ट वांट टू हाईलाइट वन पॉइंट दैट यू, तो जो एग्जाम का पेपर है राइट, यू ओनली नीड 33% मार्क्स, सो जनरली यू टेंड टू टेक इट वेरी कैजुअली दैट ये तो हो जाएगा, बट एज वन थिंग दैट यू राइटली पॉइंटेड आउट इज, see not all the 80 questions would be easy, or neither not all of them would be difficult. As a question setter हमेशा याद रखो, he also has some framework that how is he setting the question paper. अगर वो सारा ही difficult बना देंगे then there is no point in checking the candidates, right? Because candidate का caliber check कब होगा, when candidate can understand that ये difficult question है, maybe let me not solve it, move on to the next question, and maybe if I have time I'll come back to it later. वही जो कैंडिडेट है जिसने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया है या जिसको ज़्यादा सीसैट के बारे में पता ना हो, वो क्या करेगा, दे विल जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन एंड स्टार्ट सॉल्विंग बाय द एंड ऑफ 25 क्वेश्चंस they would realize कि टाइम तो खत्म हो गया, right? And only to regret later that oh the last few questions were easy, right? So ये भी अगर आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए. I typically say this CSAT exam, it's not about what you choose but it's about what you leave, and as long as you stay away from the difficult questions, you are only marking all the easy and medium level questions, and because you are solving all the easy questions generally your accuracy is also higher, so that's how you crack the exam. So if you analyze, if any one of you have appeared for CSAT or is appeared for any mock, just take a look as to how much time you spent on the difficult question, how much time you spent on the questions that you did not mark answers to, and you will realize that more than half of your time is spent on that. And that's exactly what we have to reverse. We have to focus on easy and medium question and leave out all the difficult ones. Yeah. So the solution for this is starting early. बहुत सारे students को पता नहीं कि कहाँ से start करना है. And to solve that problem, what we are going to start on our YouTube channel is we are going to start a series जहाँ weekly एक video लाएंगे about CSAT questions, where sir would be guiding us कि इस questions के through हम concepts learn करेंगे. Secondly, he'll be telling us few of the tricks कि question को कैसे attempt करना है. तो हम practice भी करेंगे and concepts भी learn करेंगे. Every week में एक sessions हम upload करेंगे on our YouTube channel for free. Secondly, if you want to have a personalized guidance with sir, आप sir के साथ 1-to-1 Zoom session के through भी connect कर सकते हैं. हमने Google form दिया है and this is absolutely free. आप sir के साथ guidance ले सकते हैं. Personalized 1-to-1 आप उनको question पूछ सकते हो, आपके problems पूछ सकते हो, and he will be the right person to tell you कि ऐसे situation में क्या करना चाहिए. Third important चीज़ is to check कि आपका level of preparation क्या है. What we are going to have is we are going to have a 20 question test before you are able to connect with sir. आप वो 20 क्वेश्चन का टेस्ट दोगे, based on the result sir would be able to tell you कि आपका लेवल क्या है. and these 20 questions जिसमें कुछ सिंपल, मीडियम और कुछ डिफिकल्ट है, and ये टाइम बाउंड सॉल्व करके हम देखना चाहते हैं. इट हैज टू बी सेल्फ डिसिप्लिन के साथ आप सॉल्व करोगे, हमें रिजल्ट बताओगे, एंड बेस्ड ऑन दैट वील टेल यू कि आप ये चीजें कर सकते हो. सो वी वांट यू टू टेस्ट. देयर कैन नॉट बी अ यूनिफॉर्म स्ट्रैटेजी फॉर एवरीवन. कुछ बच्चों का ठीक है टाइम मैनेजमेंट की वजह से हो रहा है, कुछ का फॉर्मूलाज या कुछ के कॉन्सेप्ट, कुछ स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट्स गलत हैं. तो ऐसे सिचुएशन में वी वांट टू हैव अ डिफरेंशिएटेड अप्रोच विच इज पर्सनलाइज्ड. तो ऐसे सिचुएशन में हम चाहते हैं कि हम एक टेस्ट देंगे. सेकेंडली पोस्ट टेस्ट वील हैव अ 1-to-1 सेशन विद सर. सर वुड बी टेलिंग यू कि कैसे अप्रोच करना चाहिए, क्या इंडिविजुअलाइज स्ट्रैटेजी चाहिए, जिससे आप आपका जो सीसैट का जर्नी है बहुत इफेक्टिव तरीके से कर सकते हो, एंड चांसेस बढ़ जाएंगे सीसैट क्लियर करने का. ये एक इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाहता हूँ. नाउ वील टेक फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम एस्पिरेंट्स एंड देन हम उसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे. So the question that I rightly understood is that how do you eliminate the difficult questions? Reasoning में थोड़ा easy हो जाता है because questions are smaller, you read it, maybe give it a try for 10-20 seconds just to realize whether it's easy or difficult. But what would you do in English, right? So English में आप सबसे पहला जो मेरा एक approach रहा है कि I always read the questions first, especially for CSAT. So generally when the questions are which of the following is the main idea, or which of the following can be inferred from the passage, are generally the ones that I generally look at. Second is when I look at the paragraph, right, थोड़ा सा मैं एक skim कर लेता हूँ.
कि ये पैराग्राफ किस बारे में बात कर रहा है. सो जैसा कि अभी रिसेंट फ्यू ईयर्स में सीसैट में ऐसा हुआ है कि अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट एंड द पॉलिसीज रिगार्डिंग दैट, राइट. तो मैंने ऐसा किया था कि एक दो मैंने सेशंस ऐसे लिए थे जहाँ पे सिर्फ हमने एनवायरनमेंट वाले ही पैराग्राफ्स वगैरह सॉल्व किए थे. सो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड दैट कंफर्ट जोन ऑल्सो कि विच काइंड ऑफ लैंग्वेज एंड पैसेजेस इज यू आर कंफर्टेबल विद. सो अगर एनवायरनमेंट वाला आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो chances are you would be able to understand. Yes, there are some questions which are science and technology based. तो जैसा कोई rules and regulations पे एक passage आ जाता है, जैसा I guess last year passage था based on that automatic driving cars, right? उस पे एक passage था, how would you regulate that? So if you are not comfortable with science and technology, perhaps leave that question is what I would suggest. कुछ questions आते हैं philosophy के, मतलब 2 साल पहले तो ऐसे भी क्वेश्चन आते थे, व्हाई डू मैन एग्जिस्ट. तो ऐसा भी कुछ क्वेश्चंस आए थे. सो इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, सो दैट इज अनदर पैरामीटर. थर्ड पैरामीटर इज आई जनरली डोंट लाइक द क्वेश्चंस व्हेन दे से ओनली वन ऑफ देम इज ट्रू और ओनली 2 ऑफ देम आर ट्रू और ओनली 3 ऑफ देम आर ट्रू. सो पैसेज समझ गया, ऑप्शंस भी थोड़े बहुत समझ गए, बट नाउ व्हेन इट कम्स टू मार्किंग, one teeny tiny mistake and you will lose out on that question. So generally I also see at the option कि straightforward अगर question है, which of the following is the main idea, 4 option है, उसमें से mark करना है. So generally वो एक होता है. दूसरा ये हो गया कि चलो मान लो कभी कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट गलती से चूज कर भी लिया आपने, तो उसमें एक सबसे बड़ा एक माइंडसेट ये होना चाहिए कि अगर आपने डिफिकल्ट क्वेश्चन गलती से चूज कर भी लिया, डू नॉट टेक अ रिवेंज ऑन दैट क्वेश्चन बाय मार्किंग इट. कभी कभी क्या होता है, अपन उसमें पैसेज डिफिकल्ट निकला, ऑप्शन डिफिकल्ट निकले, आप 4 मिनट 5 मिनट डाल देते हो, फिर सोचते हो कि यार अगर मैंने 5 मिनट डाला है, मैं बिना मार्क करे कैसे आगे बढ़ूँ, राइट. एंड देन इन दैट वेक ऑफ डूइंग दैट यू मार्क समथिंग. अब उसमें 2 प्रॉब्लम हो जाता है. एक, आपका टाइम वेस्ट हो गया, तो आप पैनिक आ जाता है कि यार इतना सारा टाइम स्पेंड हो गया और एक ही क्वेश्चन सॉल्व हुआ, अभी जल्दी से आगे बढ़ते हैं. तो नेक्स्ट वो पैनिक का प्रॉब्लम ये है कि वो आगे के 4 क्वेश्चन जो इजी होंगे उसको भी खराब कर देगा. दूसरा, जो कि आपने एज ए रिवेंज उसको मार्क किया, वो गलत मार्क होगा. तो मेरा ये कहना होता है कि एक वो पेशेंस और वो मैच्योरिटी भी बिल्ड करना जरूरी है कि समटाइम्स यू विल टेक बेट्स दैट यू विल लूज एंड इट्स ओके टू एक्सेप्ट दैट. सो ठीक है, कभी कभी डिफिकल्ट क्वेश्चन चूज कर लिया, मूव ऑन. मैं हमेशा कहता हूँ कि इन एग्जाम एंड इन लाइफ ऑलवेज मूव ऑन. ठीक है, अगर आप उस चीज को पकड़ के बैठोगे तो फिर, और सबसे बड़ा मतलब मेरा ये कहना है कि गेटिंग स्टक इन द एग्जाम इज क्राइम. यू मस्ट स्लैप योर सेल्फ इफ यू आर गेटिंग स्टक इन योर पेपर. तो जैसे ही एक 2 मिनट का एक मार्कर बना लो दिमाग में, यू ट्रेन योर बॉडी सो मच दैट यू रियलाइज वो 2 मिनट्स हैव पास्ड, राइट. जनरली वो हो जाता है, एक 4-5 मॉक दो आपका हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि 2 मिनट कैसा फील होता है. दिमाग में 2 मिनट का मार्कर फिक्स कर लो. जैसे ही 2 मिनट का बेल बज गया, मूव ऑन. अगर नहीं हो रहा है, मूव ऑन. क्योंकि आप हो जो उस चीज को मूव ऑन कर रहे हो, बट आपके जैसे 1000 अदर कैंडिडेट्स होंगे जो वहां स्टक हो जाएंगे. एंड दैट्स वेयर टॉपर्स गेट्स डिफरेंशिएटेड, इज व्हाट आई थिंक आई वुड डू. आई थिंक सो पेशेंस, मैच्योरिटी डेवलप करना. जैसे हर एक फील्ड में अगर हम देखें, MS धोनी, why he is successful? Because patience, to be calm in that difficult situation and to take decisions. तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि सीसैट में सबसे इंपॉर्टेंट है कि पेपर डिफिकल्ट आने वाला है. मैं हमेशा बोलता था कि गूगली आने वाला है. हर बार कुछ तो नया UPSC इंट्रोड्यूस करता है. पेपर इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट. आप ये सोच के मत जाओ कि इस साल प्रोटेस्ट हो रहे हैं इसलिए अगले साल UPSC डिफिकल्ट सिंपल लेके आएगा. देयर हैज बीन अ ट्रेंड कि कट ऑफ कम होगा. तो मेनी स्टूडेंट्स आर ट्राइंग टू फाइंड अ सॉल्यूशन या शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं. दे डू नॉट वांट टू गो थ्रू द हार्ड पाथ. द हार्ड पाथ से ही रिजल्ट आएगा. तो मैं हमेशा बोलता हूँ हार्ड वर्क कीजिए, कोई शॉर्टकट मत देखिए कि नहीं मैं सिर्फ कोई फॉर्मूला बुक से मेरा सिलेक्शन होगा या कि सिर्फ मॉक टेस्ट से सोल्यूशन होगा. यू हैव टू हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच. आपको लॉजिक भी चाहिए, आपके पास राइट फॉर्मूलाज, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए एंड प्रैक्टिस चाहिए. तो तीनों एस्पेक्ट नेसेसरी है इफ यू वांट टू क्लोज डाउन ऑन सीसैट. There are certain questions which are tricky. If you know the trick, it's a 2 minute. Otherwise, you won't be able to solve. Right. How do you deal with such question, and rather, how do you prepare for such question? तो right. तो इसका सबसे सीधा solution ये है कि
अभी क्या होता है कि अभी वी ऑलवेज थिंक कि मैंने कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए प्रैक्टिस में, यू नो पीपल से मैंने 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, मैंने 2000 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। मेरा ये मानना है कि जिस तरह से एग्जाम अभी बनते जा रहा है, इट इज़ अ ट्रेडिशनल अप्रोच वेर यू सॉल्व सो मेनी क्वेश्चंस दैट इवेंचुअली यू आर गुड एट इट एंड यू विल क्रैक द एग्जाम। अभी वैसा नहीं रहा है। अभी ऐसा है कि आप भले ही 500 ही क्वेश्चन सॉल्व करो, बट आई वॉन्ट यू टू एक्सप्लोर वराइटी ऑफ क्वेश्चन। तो कभी कभी क्या होता है, अपन मान लो एक फैक्टराइजेशन का LCM HCF ले लिया, उस पर अगर आप 100 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो फायदा नहीं होगा। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, बट फायदा क्या है, हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन आएगा उस पर। बट वही फैक्टराइजेशन में और 10 टॉपिक्स भी है, क्या आपने वो कवर किया है? एटलीस्ट 10 क्वेश्चन ईच यू मस्ट सॉल्व। सो मैं हमेशा कहता हूँ कि एक्सपोज योर सेल्फ टू वराइटी देन क्वांटिटी। ओके, अब वैरायटी कहाँ से मिलेगा? अगर आप एक ही बुक पढ़ोगे तो एक ही वैरायटी के क्वेश्चंस बताएंगे। सो जनरली यू नीड कंटेंट विच इज क्यूरेटेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, एंड दैट्स एग्जैक्टली यू नो लास्ट ईयर जो मैंने कोर्स लिया था उसमें भी आई हैड सोर्स कंटेंट फ्रॉम 15 डिफरेंट सोर्सेज, अलग अलग बुक्स है, कैट लेवल के है, CSAT के है, पास्ट ईयर क्वेश्चंस है, ऐसा सब लेके। तो मेरा यही कहना है कि थोड़ा वैरायटी पे फोकस करो, क्वांटिटी पे फोकस मत करो। आई नो अपना स्कूल लेवल से अपन यही करते आ रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम होता है, यू नो 10th स्टैंडर्ड का, स्कूल 8 महीने में ही सिलेबस खत्म कर देता है और फिर 4 महीने बस प्रीलिम्स पे प्रीलिम्स लेता जाता है। बट CSAT वैसा नहीं है। बोर्ड्स एग्जाम में आपको सिलेबस पता है कि ये ही क्वेश्चंस आएंगे, इतने ही टॉपिक्स में से आएंगे, और वही आप बार बार आप जितना वैरायटी उसमें कवर कर सकते हो आप कवर कर लेते हो। And that is the reason why most of the candidates score 90 plus, 80 plus in the 10th standard. वही CSAT में स्कोर कम हो जाता है क्योंकि सिलेबस तो सेम ही है, पर इधर स्कोर कम क्यों हो जाता है? क्योंकि वैरायटी आप कैप्चर नहीं कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे सिलेबस डिफाइंड ही नहीं है। अगर सिलेबस डिफाइंड ही नहीं है तो आप कैप्चर क्या करोगे? आपको पता क्या है कितना स्कोप होगा? सो दैट इज द रीजन व्हाई आई फील कि टेक हेल्प फ्रॉम द एक्सपर्ट्स एंड लर्न फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस एंड सॉल्व वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देन क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस। मतलब वैरायटी से ये भी फायदा होगा कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नेक्स्ट लेवल पहुंच जाएगी, क्योंकि एक बार हमने एक वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो वो क्लैरिटी सिर्फ उस कॉन्सेप्ट रिलेटेड है। लेकिन अगर आपको होलिस्टिकली पूरा टॉपिक्स जानना है, जैसे विद रिस्पेक्ट टू कार्स के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, स्पीड बेस्ड क्वेश्चन, टाइम एंड स्पीड क्वेश्चन, तो हमने एक वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व किए तो हमारे उस पर्सपेक्टिव से सारे क्वेश्चन सही होते हैं। लेकिन UPSC बहुत इनोवेशन कर रहा है, दे वांट यू टू हैव अ मल्टी डायमेंशनल, आपका एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी चाहिए टॉपिक्स के बारे में, एंड वो क्लैरिटी को अप्लाई करना है उस क्वेश्चन में, तभी वो सॉल्व होगा। तो वो एक अच्छा अप्रोच आपने टाइम स्पीड डिस्टेंस बताया, अभी ऑन द फेस ऑफ इट देयर इज ओनली वन फॉर्मूला कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, एंड द होल टॉपिक इज बेस्ड ऑन दैट। बट अभी उसी में आपको रेलवेज के क्वेश्चंस आएंगे, पैरेलल ट्रैक, अपोजिट ट्रैक, है ना, आपको उसी में बोट्स एंड स्ट्रीम आएगा, उसी में रिलेटिव स्पीड के क्वेश्चन आएंगे, उसी में 2 people अप्रोचिंग ईच अदर आ जाएगा, और उसी में कभी कभी काफ़ी लॉजिकल क्वेश्चंस भी होते हैं कि एक द क्वेश्चन इटसेल्फ लुक्स लाइक अ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, इतना बड़ा तो बस क्वेश्चन ही होता है, फिर उसमें वो सारा डिस्क्राइब करते हैं, वो पहले उधर गया, हाफ वे दे मेट, देन दे कम बैक, दे मेट अगेन, दे कम बैक। तो मेरा ये कहना है कि क्या आपने ये सारी वैरायटी कवर की है क्या? राइट, कभी कभी आप 100 क्वेश्चंस कर लोगे सॉल्व, बट आर यू श्योर दैट हैव यू कवर्ड द वैरायटी? वैरायटी तभी कवर होगा जब आप अलग अलग सोर्सेज से क्वेश्चन सॉल्व करोगे। सो एक तो so if I understood the question correctly, you are basically asking number system questions where you have P, Q, R, S, T, 4, 5 numbers are given, some of them are even, some of them are odd, and then you have 2 or 3 statements, P plus Q minus R is always even, 4P minus Q plus S is always odd, or something like that, and then you have options like one of them is true, 2 of them are true, right? How do you tackle such question? So one approach which you already answered, that assume some numbers, but उसमें problem सबसे बड़ा क्या होता है पता है क्या? कि sometimes we fail to realize कि question में कुछ inherent चीजें दी होती है। जैसा कुछ question में था कि P, Q, R, S are natural numbers. So the moment you know they are natural numbers, you have to assume numbers that are starting from 1 onwards, all integers, right? और एक question था जिसमें था real numbers. अब real number में अपन गलती क्या करते हैं कि we always assume numbers like 1, 2, 3, 4, but we fail to realize that -1, -2 is also possible, and 1.5 is also possible, because real is you can take anything, right? तो मेरा ये मानना है कि ऐसे क्वेश्चन में
ट्रेडिशनली अप्रोच वही होता है कि यू अज्यूम सम नंबर्स विच समटाइम्स वर्क, मोस्ट ऑफ द टाइम इट वोंट. बट एट द सेम टाइम अगर आपको पता है कि कोई भी इवन नंबर होगा, यू कैन राइट इट एज 2n, राइट? एंड इफ देयर इज एन ऑड नंबर, यू राइट इट एज 2n plus 1, राइट? और उस फॉर्म में p plus q minus r होगा. सो जस्ट राइट 2n plus 1 plus 2n plus 1 minus 2n, और देखो उसमें से क्या कट हो रहा है और क्या हो रहा है. तो जनरली आंसर आ जाएगा 2 in bracket n plus 1. The moment you have 2, you know it's always even, right? The moment you have plus 1 in the answer, you know it's always odd. तो मेरा ये कहना होता है कि अब ये करने के लिए ना, see this is a hard path, right? The first instance is always let me assume some numbers, and जो आपका पहले दो में कुछ बैठ गया, नहीं बैठा, एक केस में ऑड आ रहा है, एक केस में इवन आ रहा है, फिर आप उस क्वेश्चन को ही छोड़ देते हो. तो मेरा ये मानना है कि टेक अ स्टेप बैक, maybe go down in the basics, try and understand what are odd numbers, what are even numbers, what are the properties of them. और अगर उसमें अगर और generally use generalized approach rather than specific approach. ये हो गया specific approach where you assume some numbers. जनरल टर्म्स में लिखने का ट्राई करो, ठीक है? और उसके लिए प्रैक्टिस लगेगा. उसके लिए आपको ऐसा नहीं होगा कि आप अचानक से उसको करना स्टार्ट कर दोगे. यू विल रिक्वायर अ लिटिल बिट ऑफ रीडिंग, maybe perhaps some sessions on that you might have to attend, and that's when you will take care of it. एंड मुझे लगता है जब डिफिकल्ट क्वेश्चन है या आपको लग रहा है कि ये कन्वेंशनल अप्रोच से उसमें बहुत सारे फार्मूलाज लगने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चंस में डेफिनेटली यू विल फाइंड सम लॉजिक. कहीं ऑप्शन से आंसर आएगा या कहीं इनहेरेंटली ऐसा चीज़ रहेगा जहाँ से आपको सिंपल लॉजिक से वो आंसर आ सकता है. एंड यूपीएससी वांट्स टू चेक दो चीज़ें चेक कर रहा है कि कोई बंदा वो ट्रेडिशनल अप्रोच से जाएगा तो उसको 20 से 25 मिनट लगेगा एक क्वेश्चन में, लेकिन इफ यू टेक अ स्टेप बैक, जैसे सर ने बोला, एंड लुक एट द जनरलिस्टिक अप्रोच, एक कुछ लॉजिक बन रहा है क्या इस क्वेश्चन से, कहीं ऑप्शन से कहीं आंसर आ रहा है क्या, ऐसे सिचुएशन में जहां डिफिकल्ट क्वेश्चन है देयर इज सर्टन पॉइंट, एक पॉइंट वो क्वेश्चन में आपको ढूंढना है दैट वुड गिव यू द आंसर. मुझे ऐसा लगता है कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस में टेक अ स्टेप बैक, डू नॉट गो विद द ट्रेडिशनल अप्रोच, लुक एट फ्रॉम अ वाइडर पर्सपेक्टिव एंड यू वुड डेफिनेटली गेट एन आंसर, आई थिंक. So the question is in assumption questions, right? Sometimes some assumptions are irrelevant. So assuming there are 4 options, 3 are always irrelevant. 1 is relevant. But sometimes you tend to mark irrelevant option and you feel it's irrelevant, right? तो उसका basic example क्या है कि सबसे पहला चीज़ हमेशा याद रखना है कि assumption by definition is assumed. So it's not stated in the passage. तो कोई भी अगर restatement होगा जो passage में already दिया हुआ है, that is not your answer. सेकेंड ये होता है कि अजम्पशन में जनरली कैसा होता है कि कोई भी एक पैराग्राफ होता है, उसका एक कंक्लूजन होता है और उसके सपोर्टिंग डिटेल्स होता है. सो कैन यू आइडेंटिफाई दोज, यू हैव टू फिगर आउट. एक पैराग्राफ में जनरली एक आइडिया होता है विच इज़ द कंक्लूजन, और वो आइडिया बताने के लिए वो 4 एविडेंस देगा, कुछ इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देगा, कोई वर्बैटिम देगा, कोई सपोर्टिंग डिटेल डालेगा, राइट? नाउ एनीथिंग दैट लिंक्स द टू इज जनरली योर अजम्पशन. तो वो अगर आइडेंटिफाई कर पा रहे हो तो बहुत अच्छा है. तीसरा, अगर वो भी नहीं हो रहा है तो सबसे बेस्ट तरीका जो मैंने देखा है वो ये है कि ऑलवेज निगेट द ऑप्शन और सी विच वन इज अटैकिंग द आर्ग्यूमेंट. सो मान लो एक अजम्पशन है, ठीक है, उसका अपोजिट आप समझ लो कि ये अजम्पशन है, सो यू निगेट दैट ऑप्शन. और वो निगेशन जो वाला जो ऑप्शन है, सी बिकॉज ऑफ दैट द होल पैसेज फॉल्स और नॉट. तो कभी कभी निगेशन टेस्ट भी काम करता है कि अगर मैं ये अजम्पशन ही अगर निगेट कर दूं तो मेरा आर्ग्यूमेंट ही खराब हो गया. सो देन दैट इज योर आंसर. सो दीज आर 2-3 अप्रोचेस वेयर आई फील assumption is required. A lot of people make mistakes in assumption questions. It is predominantly asked in it has been asked predominantly in the CSAT as well. And I feel उसके लिए ही सिर्फ एक assumption समझने के लिए भी I guess you must spend at least 3-4 hours. Maybe Definitely, try. I'll ask sir to take a session on Yes, assumptions. yes. Sure, especially क्योंकि Yeah. वो इंग्लिश के क्वेश्चंस एंड इन्फ्रेंस एंड assumptions. Right. If पिछले साल भी आपने लिया था, लेकिन I want a fresh approach अगर आप ले सकते हैं. Right. For our Sure. students, Sure. definitely YouTube channel Sure. हमारा मतलब हमारे YouTube के फैमिली एंड स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्प. Sure. So basically these are all part of critical reasoning. तो critical reasoning के एक सीरीज ही अपन बना सकते हैं कि what are facts, inference and judgment, what are opinions, what is inference. Sometimes we get confused between what is an inference, what is a conclusion, right? Then what is implied versus inference, main idea, assumption, rational solution. So
Definitely, we'll do that. No worries. So the crux of the session is we need to start early. To solve your problem, we are starting a YouTube series जहाँ sir would be giving his insight, practice के through, conceptual clarity के through, through building logic. We'll be trying to start our CSAT का journey start करेंगे, and we'll have one-to-one session with sir where you will be able to ask sir specific questions. Thirdly, we'll have a small test. क्योंकि जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे, बेस्ड ऑन दैट रिजल्ट सर वुड बी एबल टू गाइड यू. तो हम पहले एक छोटा टेस्ट लेके देखेंगे कि आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या है, एंड बेस्ड ऑन दैट वी विल बी एबल टू गिव यू अ पर्सनलाइज सोल्यूशन. तो उस पर्सपेक्टिव से हम आगे की जर्नी हम कंटिन्यू करेंगे. एंड आई वुड लाइक टू थैंक ऋषि सर टू कमिंग डाउन टू आवर ऑफिस एंड टेकिंग दिस इंपॉर्टेंट सेशन. वी वुड लव यू टू टेक स्पेसिफिक क्वेश्चन फ्रॉम स्टूडेंट्स ऑल्सो. एंड अगर आपके और भी कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में डालिए. वील सॉल्व दोज क्वेश्चन एंड वील कम अप विद नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो. Thank you. Thank you so much, and I hope the session will help you. And tune in for the series. I've created questions from various different sources, and the rationale behind series is, if I just take a minute, sir. Yes, yes. The rationale behind that series is very simple. As I said, consistency is the key. So that series will help you become consistent, because I will be uploading videos consistently. Right. So you just have to sit back, relax, watch it, and just grasp what is there in that video. So thank you so much, sir, for inviting me. It was really enriching talking with you, and all the best, everyone. Thank you.